Hello, everyone. I am Dr. Rashmi Tiwari, and I would like to welcome all of you. Very good afternoon, everyone, and good afternoon, sir. So, I am Dr. Rashmi Tiwari. I am working as consultant gynecologist in Ambikapur, Chhattisgarh, and today we will be welcoming our sir. As everyone knows sir very well, but I would like to introduce our sir. Sir is my mentor. Sir is Dr. Professor Colonel Pankaj Talwar sir, VSN, MD and PhD. Sir is PhD in clinical embryology. Sir is CEO at iHoma Fertility Clinics and IC Training Academy, Gurugram, Delhi. Sir is also Dean at Department of Clinical Embryology, Sridhar University, Pilali. Sir is very renowned personality. Sir is known globally everywhere. So let's introduce more about Sir. Sir has received a special medal, Vishisht Seva Medal, by the President of India for his work in the field of reproductive reproductive technology, assisted reproductive technology. Sir has done more than 100 publications. Sir has written edited so many books, and Sir has trained and mentored students across the world. And so I'm feeling very blessed to be the part of Sir's life. And I'm feeling honored to be a moderator with this live sessions and infertility session. So today our infertility session will be about thin endometrium. So सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एंडोमेट्रियम कहते कैसे हैं। यूट्रस जिसे गर्भाशय भी कहते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। सबसे बाहरी परत जिसको सिरोसा कहते हैं, बीच वाली परत को कहते हैं मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली परत जिसे लोग बोलचाल की भाषा में झिल्ली भी कहते हैं, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम माहवारी के दौरान पूरे महीने अलग-अलग मोटाई उसकी होती है और एक समय आता है जब पीरियड्स आते हैं, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है और फिर वो रीग्रो करती है नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए वो प्रिपेयर होती है। तो अब हम थिन एंडोमेट्रियम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सर से बात करते हैं कि सर एंडोमेट्रियम हमें जानना क्यों जरूरी है, हेल्दी क्यों होती है, अनहेल्दी कब होती है और बेसिकली थिन मतलब कितना थिन हो कि हम उसे थिन एंडोमेट्रियम कहें। सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू रश्मि, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। हाउस अंबिकापुर? Sir, Ambikapur is weather is lightning, raining everywhere, and power cut off. It's only there. Since 2 days, it's been lightning, raining, and power cut off. Delhi is very, 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 very warm. It's burning. So good, Rashmi. Thank you so much for being with me. And at the very onset, a big hello to you, big hello to everyone who has joined us. And it's always a great, great pleasure to be with all of you here. So आज का जो हमारा विषय है, that is thin endometrium, and we have spoken on thin endometrium before also. Yes, sir. अब ये होता क्या है? What is thin endometrium? Commonly they say ET thin है, ET thick है. Yes. Imagine, Rashmi, that people, the women who come to a doctor, एक नई भाषा, नई परिभाषा सीखते हैं, thin and thick ET. Yes, sir. Thin क्या है? What is ET? Nobody knows. But मेरा ET thin है. ये फोन करते हैं, I get calls at odd hours. सर मेरा thin ET है, मैं क्या करूं? What is ET? Nobody knows. So ET stands for endometrium. It's basically ET is endometrium. That is endometrial thickness. So ET का मतलब होता है E मतलब endometrium, T मतलब thickness. अब thickness हमें पता ही है, जब हम एक स्केल के साथ नापते हैं कि थिन कितने मिलीमीटर की है, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ये एक यूनिट है मेजरमेंट का, थिकनेस और थिननेस. एंड एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एज यू जस्ट टोल्ड अस. और एंडोमेट्रियम का जो मेन रोल है, इसके 3 रोल होते हैं रश्मि, फॉर ऑल द फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड हियर. इसके 3 मोटे रोल हैं. हमारी पूरी बॉडी में ना रश्मि, हमारी पूरी बॉडी में कुछ बदलता नहीं है, चाहे लिवर, किडनी, स्प्लीन, ब्रेन. अगर हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं आज या 5 साल के बाद, until we have some disease, it's not going to change. Your kidney will look like a kidney only. But in a woman, there's a very beautiful thing called endometrium, which changes every day. Yes. जैसे हमारे सीजन होते हैं ना, समय होता है, so हर महीने में कम से कम 4 बार endometrium बदल जाता है पूरा. So it's a very beautiful thing about endometrium, that it changes its color, changes the thickness, and changes the functionality.
तो अगर हम एक महीने का देखें, पीरियड टू पीरियड को चेक करें किसी वुमन का, तो एंडोमेट्रियम पहले बहुत थिन रहता है, देन इट बिकम्स थिकर एंड थिकर, और फिर खूब थिक हो जाता है, फिर वो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, उसको पीरियड्स आ जाते हैं वुमन को। सो एंडोमेट्रियम का जो मेन रोल है वो होता है कि एक तैयारी करना फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि जब एक भ्रूण तैयार होता है, व्हेन द एम्ब्रियो इज बीइंग प्रिपेयर्ड, तो एंडोमेट्रियम का इम्प्लांटेशन करने के लिए एंडोमेट्रियम तैयार होता है। पहला उसका काम है इम्प्लांटेशन के लिए, जो भ्रूण को बैठने के लिए तैयार करने के लिए रेडी होना। दूसरा, अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो उसको इम्प्लांटेशन के अंदर हेल्प करना by changing the thickness, changing the blood flow, by changing the chemicals being secreted। और थर्ड होता है कि अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो दोबारा से गिर जाना, दोबारा से पीरियड्स आ जाना। जो साइकिल होता है ना, फ्रॉम डे 1 आ गया वुमन का, जैसे ना डे 1 है, डे 2 है, तो एक डे 1 से लेकर अगले डे 1 तक का जो पीरियड होता है हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बीच में एंडोमेट्रियम अपना जो रूपांतर है वो बदलेगा। तो पहले एंडोमेट्रियम डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पे ब्लीड करेगा। 4 to 5 days वुमन हैज गॉट ए ब्लीडिंग, उसे रक्त प्रवाह होगा, और उसके बाद एंडोमेट्रियम, उस समय एंडोमेट्रियम बहुत थिन रहेगा, उस समय एंडोमेट्रियम इज ऑलवेज वेरी थिन, एंड देन एंडोमेट्रियम कीप कमिंग थिकर एंड थिकर अंडर इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। सो किसी भी जो डिम्ब होते हैं ना स्त्री के अंदर, जो एक्स होते हैं, द एक्स विल स्टार्ट हार्मोन्स फ्रॉम डे 2। जैसे जैसे वो हार्मोन्स बढ़ेंगे उसी तरह से एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। और तकरीबन अराउंड डे 8, डे 9, डे 12 एक एवरेज वुमन के अंदर आप देखेंगे कि जो मात्रा होती है हार्मोन्स की वो तकरीबन 200 यूनिट हो जाती है एस्ट्रोजन की। जब 200 यूनिट एस्ट्रोजन की हो जाते हैं, दैट इज एन ऑप्टिमल वैल्यू फॉर द एंडोमेट्रियम टू गेट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। तो सिर्फ ईटी का थिक होना जरूरी नहीं है, हमारे बदन में जो डिम हार्मोन बना रहे हैं, बेसिकली ईस्ट्रोजन, वो सारी बहनों को जानना है कि सिर्फ थिन ईटी की बात नहीं करनी है, तो ये भी देखना है कि उनका हार्मोन की मात्रा कितनी है बदन के अंदर। तो जब 200 पाइकोग्राम के करीब लेवल जाते हैं तो तब एंडोमेट्रियम तैयार होता है। और एक एंडोमेट्रियम जो कि जिसमें एक भ्रूण या फिर एक एम्ब्रियो इम्प्लांट कर सकता है, तो तकरीबन 7 से 8 मिलीमीटर का होना चाहिए, एवरेज मिनिमल साइज। And as we move ahead till around 10 to 11 millimeter, it becomes nice fluffy one. Embryos can implant there. अब एंडोमेट्रियम का मेन काम क्या है? एक छोटे से एम्ब्रियो का, बेबी को पालन पोषण करना। एक छोटा सा जो भ्रूण बनता है उसमें जीवन होता है और वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है, हर रोज मल्टीप्लाई करेगा। पहले दिन उसके अंदर होंगे 1 सेल, फिर बनेंगे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, और 5वें दिन तक आते आते इट हैज गॉट मोर देन 300 सेल्स बाय डे 5। तो बहुत तेजी के साथ बच्चा बढ़ रहा है, तो बच्चे को पालन पोषण करने के लिए भी नीड ए वेरी सॉफ्ट पिलो। अब सोचिए छोटे बच्चे को क्या चाहिए, एक छोटा सा पिलो और एक अच्छी सी रजाई, छोटी सी रजाई, ब्लैंकेट, तो बच्चे को जो गर्मी भी देगी, बच्चे को प्यार भी करेगी, एंड द बेबी इज फीलिंग वेरी कंफर्टेड एंड फीलिंग एट होम। छोटा बेबी, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ में। बट सो एक अप्रोप्रिएट एंडोमेट्रियम जो है वो तकरीबन 8 से 10 मिलीमीटर के बीच में माना जाता है। जब एक एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 मिलीमीटर से कम होती है तो हम कहते हैं थिन एंडोमेट्रियम। सो अप्रोप्रिएट एंडोमेट्रियम इज 8 to 10-11 मिलीमीटर, और अगर एंडोमेट्रियल की थिकनेस 7 से कम हुई उसे बोलेंगे थिन, पतला एंडोमेट्रियम। और अगर 12 से ऊपर हो गई तो बोलेंगे थिक एंडोमेट्रियम। सो हम फोकस करते हैं 8 और 10-11 मिलीमीटर के एंडोमेट्रियम पे। एक एप्रोप्रिएट एंडोमेट्रियम होता है, दिस इज राइट एंडोमेट्रियम टू गिव ए लिटिल बेबी फूड, एनर्जी। जैसे मैंने बोला, छोटा सा क्विल्ट, एक छोटा सा पिलो, बेबी कैन एक्चुअली बी एंजॉयिंग द जर्नी इन द वूम ऑफ द मदर। ओके सर, तो 7 से नीचे को हम थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं। सर, क्या ऐसा कोई समय है पेशेंट को जब बोलना है कि आपको अपना एंडोमेट्रियल थिकनेस कराना, तो पेशेंट को क्या पता होना चाहिए कि उसे कब जाना है साइकिल?
साइकिल के कौन से डे में जाना है, क्योंकि सर ईस्ट्रोजन तो सर 200 पिकोग्राम, लेकिन वो पेशेंट नहीं समझ पाएगी सर, तो उसके लिए उसको क्या समझाना चाहिए कि कब कराना चाहिए बहुत ही एंडोमेट्रियल बेहतरीन थिकनेस? सवाल पूछा आपने, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। इसके लिए आप देखिए कि नॉर्मली ऑल दी वुमेन आर प्रोग्राम्ड। जो भी चीज ओके ईश्वर ने सर। करी है, व्हाटएवर गॉड हैज डन, इज प्रोग्राम्ड ए वुमन, यस। इज प्रोग्राम्ड ए वुमन इन द वे कि वो शी इज रेडी फॉर हर पीरियड्स, अंडरस्टैंड? एवरी मंथ शी विल ओके सर। मेंस्ट्रुएट। अब सोचिए यस सर। कि वुमन गेट्स पीरियड्स एट ऑड डेज, व्हाट विल शी डू? शी हैव यस। डिफिकल्टीज, नो, शी इज वर्किंग, शी इज गोइंग आउट। So God has made a plan that you will bleed after 30 days. तो उस समय आपको अपना देखभाल करना, अपने बदन का देखभाल करना। और अभी भगवान ने कुछ प्लान करा, और अभी आप किसने प्लान करा? मोबाइल फोन ने। अब देखिए सबके मोबाइल फोन में मेंस्ट्रुअल कैलेंडर की ऐप रहती है, which will tell you ओव्यूलेशन, यस सर, चार्ट। आपके पीरियड्स आने वाले हैं, आपको स्टार्ट यस ब्लिंकिंग। आप अगर कोई ओके। वुमेन ट्रेवल कर रही है, अगर हमारी बहन या कोई हमारी बच्ची कहीं बाहर जा रही है, तो बोलेगा कैलेंडर, उसको एप्लीकेशन बोलेगा 4 days यू मे ब्लीड। अब कैसे ये सब कैसे होता है? सो वी हैव ए इंटरवल ऑफ अराउंड 30 days बिटवीन टू पीरियड्स, एवरेज बता रहा हूँ, बाकी तो वेरिएशन तो आती हैं, बट 30 days का वेरिएशन रहता है पीरियड्स के बीच में। ओके। जब ये पीरियड का वेरिएशन रहेगा, सो जो पीरियड का जो बीच का पार्ट है ना, वो हो गया कितने दिन का हो गया? से 15th डे, राइट? 15th डे, यस 14th डे हो गया, 28 डे 30 days की साइकिल होती है। यस सर। सो जो बीच का पीरियड होगा ना, यस याद रखो कि पीरियड अगर है 28 दिन का, सो यस सर। आखिरी 14 दिन उसके फिक्स्ड है इन ए वुमन। ओके सर। ये बेसिक प्रिंसिपल है। जितनी भी हमारी बहनें आज यहाँ जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, एंड ऑल माय फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स, एंड आई नो देयर लॉट ऑफ पीपल, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वुड बी हियर, बट आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश, डबल लैंग्वेज। सो आई विल ट्राई टू कवर एवरीवन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। एंड किसी भी स्त्री में जब भी पीरियड्स आते हैं, जो इंटरवल होता है ना, आखिरी 14 डेज वो फिक्स्ड है, वो 14 डेज है। उससे पहले का जो इंटरवल है वो कम हो सकता है या बढ़ सकता है। अभी अब देखिए कि अगर किसी भी एनी ऑफ द वुमेन गेट्स ए पीरियड आफ्टर से 24 days, इसका मतलब ये हुआ कि 14 days फिक्स लास्ट है। के 14। यस तो तो शी हैज ओवुलेटेड समवेयर ऑन 10th डे। पहला 10 days का उसका इंटरवल वो वेरी हुआ है। सो एंडोमेट्रियम जो एक फॉलिकल रेडी होता है एक एग को निकालने के लिए, वो फॉलिकल कब रेडी होगा? ये फॉलिकल रेडी होगा जब फॉलिकल का साइज हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये फॉलिकल होता है जहाँ पे एक डिम बनता है बदन के अंदर, फॉलिकल बनता यस है। तो वो रेडी होगा। व्हाट टाइम विल गेट रेडी? व्हेन द फॉलिकल साइज हैज बिकम 2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। जब वो 2 सेंटीमीटर का बनेगा, उस समय क्या हो रहा है? उस समय अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इज इंक्रीजिंग। अगर आप देखें किसी भी लेडी में जब सेकंड डे ऑफ पीरियड्स होता है या जब पीरियड्स आते हैं, उस समय उसके बदन के अंदर E2 की मात्रा बहुत कम होती है। मे बी इट इज अराउंड 45-50 एक मात्रा रहती है। बाय द टाइम उस समय फॉलिकल का साइज क्या रहता है? 4 से 5 मिलीमीटर। 4 से 5 मिलीमीटर। अब सब आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो बैक, लुक एट ए स्केल और देखिए कि मिलीमीटर कितना छोटा होता है। तो अल्ट्रासाउंड में जब उसे पीरियड्स आ रहे होते हैं, डे 2 पे साइज रहेगा 4 से 5 मिलीमीटर, और 10वें 12वें दिन तक वो बन जाएगा 2 सेंटीमीटर का, यानी कि 20 मिलीमीटर का। उस समय के ऊपर जो उसमें मात्रा है एस्ट्रोजेंस की, जो E2 की मात्रा होती है, वो बन जाती है कितनी? अराउंड 200 पाइकोग्राम। 200 पाइकोग्राम एक ऐसी मात्रा है जब कि एंडोमेट्रियम ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जब भी कोई हम किसी को एडवाइस करते हैं, we never look at the endometrium on day 4 or day 5 and say thin endometrium. वो गलत तरीका है। Endometrium has to be seen on day 10 or day 11 of a cycle. That's the time when the endometrium is under effect of estrogen. और हमें और क्या देखना है? हमें देखना है कि फॉलिकल है कि नहीं है। अब देखो आप रश्मि, अगर किसी पेशेंट को पीसीओडी है, बहुत सारी बहनों को पीसीओडी होता है, अब पीसीओडी में तो फॉलिकल बनता ही नहीं है, और फॉलिकल बन नहीं रहे, और हम कह रहे हैं कि आपका लाइनिंग थिन है। इट्स रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज जब तक फॉलिकल नहीं बनेगा तो बदन में E2 नहीं होगा। अब सिंपल एग्जांपल, ग्लास बॉटल। सोचिए कि ग्लास बॉटल का जब व्हेन यू ओपन द कैप, तभी इसमें से हार्मोन्स बाहर आएंगे और तभी पानी बाहर आएगा। इसी तरह से जब भी किसी भी स्त्री के अंदर जब E2
200 का होता है तभी E2 होता है, और तभी E2 बनना शुरू होता है. So E2, so we have to always look on day 9 और day 10, और day 9 day 10 पर भी हमको फॉलिकल देखने हैं, फॉलिकल है कि नहीं है. अगर फॉलिकल बना ही नहीं है तो फिर E2 बॉडी में होगा ही नहीं और E2 थिन होगा. नंबर 1. किसी को पीसीओडी है तो क्या होगा, फॉलिकल है ही नहीं, सो E2 in such case can again be low. E2 Sometimes it is high. So it is very, very important. So that's the way we regulate the lining of the endometrium. So never look at the endometrium on day 7. I've seen काफी लोग जाते, काफी all of lot of our friends go to doctors और वो स्कैन कर लिया 7वें दिन पर, बोला थिन ईटी है, फिर वो परेशान हो जाती है. ईटी बढ़ता है, ईटी को बढ़ने के लिए समय देना होता है. So in simple to synopsis of your question is that it should be seen when the follicle is around 18 to 20 millimeter, 1, on around day 9, day 10, day 11. Number 2, अगर पीसीओडी है तो उसको भी हमें काउंटर में देना पड़ता है. अगर पीसीओडी है तो फॉलिकल बना ही नहीं है तो उसका E2 शायद लो होगा और एंडोमेट्रियम थिन होगा. Can you hear me, Rashmi? Yes, sir. Okay. So means ईटी अगर हम गलत टाइम पे करवाते हैं, people may misinterpret also as a thin endometrium. So time. Yes. तो सर मेरा आपसे एक और, हेलो, Yes. और टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है. कभी कभी पेशेंट गलत टाइम में कराता है, पतली थिन ईटी आती है और फिर पेशेंट जबरदस्ती परेशान होता रहता है. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि लास्ट के जो 14 डेज है पेशेंट के लिए, कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि लास्ट की 14 डेज आर ऑलवेज फिक्स्ड और उस हिसाब से वो अपना ईटी कैलकुलेट कर सकता है कि कौन से डे में उसको ईटी कराना चाहिए. तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी मान लीजिए पेशेंट को कंसीव नहीं करना है, इफ शी इज नॉट विलिंग फॉर कंसेप्शन और उसको थिन ईटी है, बट हर बार पेशेंट स्कैन नहीं करा पाता. लाइक मेरे प्लेस में पेशेंट थोड़े से ज्यादा पुअर पेशेंट्स रहते हैं, रूरल एरिया के रहते हैं, दे कांट अफोर्ड, है ना, दे डोंट डू रूटीन स्कैन. तो अगर किसी को ये बताना हो कि आपकी थिन ईटी है तो उसमें कोई लक्षण है क्या, वो बिना स्कैन के उसके अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं थिन ईटी के जिससे वो पहचान सके कि शायद उसकी थिन ईटी है, या उसको वरी करना चाहिए उसके बारे में? Again, a very, very beautiful question you put in. I'm an old timer, gray hairs, so I believe in, मेरे को हमेशा मेरे दिल में रहता है कि हम किसी भी स्त्री को या आदमी को जब जांच करते हैं तो we should see them clinically, then by doing hormonal investigations all the time. तो कोई याद रखो कि a woman bleeds for how many days? Now, when a woman gets her periods, she will bleed for 3 to 4 days, maybe 2 days, sometimes maybe 7-8 days. The bleeding is initially light, then becomes heavier, then again becomes light. तो शायद रश्मि आपको याद होगा जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, आई थिंक जब भी हमारे एग्जाम होते थे ना, सो गायनेकोलॉजी के अंदर, तो हमको 3-4 लाइनें बोलनी पड़ती थी अबाउट हर पीरियड्स ओनली. आपके समय में आप बहुत छोटे हो, पता नहीं, आप योर न्यू जनरेशन, बट at our times our teachers taught us to talk about menstrual period. Yes sir, menstrual history need to be present. Yes sir. Very, very relevant. आजकल लेनी बंद कर दी है हमने. Yes, हमारे में प्रोब आ गई है, हार्मोन्स आ गए हैं, E2 कर लो, LH कर लो, FSH कर लो, अल्ट्रासाउंड कर लो, 3D कर लो, कलर डॉपलर कर लो और IVF कर लो. This is the way we are going. That's not the right approach, and thank you so much for bringing it out. Yes sir. देखो, जब किसी भी हमारी बहन के अंदर, when she is making the right amount of follicles, which is around 2 centimeter, she'll have adequate amount of E2 in the body. जब E2 adequate रहेगा, which is called estradiol, the endometrial thickness will be around 8 to 9 millimeter. इतना हमने जान लिया. अगला पार्ट आता है, जब फॉलिकल बन गया, फिर फॉलिकल टूटेगा और उसमें से डिम बाहर आएगा, एग बाहर आएगा, तभी तो वो then it'll get fertilized and become an embryo. So after the follicle ruptures, like a gubara, like a balloon ruptures and egg comes out, now the value of E2 goes down and now comes into play progesterone. And progesterone comes from where? That ruptured balloon will start making progesterone.
So what is the role of estrogen? The role of estrogen is मेकिंग फिलिंग दी एयर इन द बैलून. तो अगर बैलून में अगर आप लगाएंगे ना, बैलून में हवा भरेगी तो क्या होगा, बैलून फूल के बड़ा हो जाएगा. दैट्स द जॉब ऑफ एस्ट्राडियोल, मेकिंग इट थिकर, मेकिंग अ नाइस क्विल्ट. हमेशा बोलूंगा कि जस्ट थिंक you're a little baby of 2 days of age and you need a nice cozy quilt and pillow and lot of Coke Zero and chips and mango shakes to drink. This is what endometrium does to a little baby. Nurtures it. This endometrium has to be around 8 to 9 millimeters for a very good outcome. And later on the endometrium, अब जब एक बार वो फॉलिकल टूट गया, so अभी पहले तो गर्मी मिल रही थी उसको, पहले बेबी को हम कुशन दे रहे थे, अभी हमने बेबी को बहुत अच्छे से खाना खिलाना है, न्यूट्रिशन देना है. ये काम करता है प्रोजेस्टेरॉन, एक और हार्मोन होता है which comes from that balloon only. So initially it is estradiol and now it is estradiol and progesterone, and the progesterone will now pack the endometrium. वो endometrium को अच्छे से, जैसे मम्मी बच्चे को करती है ना, ऐसे ऐसे करती है, तो उसको सुलाती है. So it will give it lot of food, उसे खाना मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. तो पहले बेबी को कोजी किया, वार्मथ दिया, गर्मी दी, और फिर बेबी को खाने के लिए खूब अच्छे से खाना खिलाया और बेबी को अच्छे से पैक कर दिया, अपने पैकिंग कर दिया बेबी को. This is the job of the second part of the menstrual cycle. पहला part estrogen endometrial thickening, दूसरा part packing of the endometrium. It is called secretory endometrium. पहला वाला part is proliferative endometrium. तो अब देखें कि जब endometrium secretory हो जाएगा, तो endometrium में अगर बेबी इम्प्लांट किया तो अच्छी बात है, अगर बेबी इम्प्लांट नहीं किया then the endometrium will break down and she will start bleeding. So this is the way the whole journey of implantation carries on. ये सवाल था आपका, that's what you wanted to know, or you had something else in your mind? Sir, actually, sir, मतलब I wanted to know कि any irregular menses or scanty bleeding kind of symptoms will be there, or so they may not have such symptoms. Is it mandatory to have such symptoms? Yes, it will happen 99%. अगर पहला वाला 14 days और next 14 days are under effect of good hormones, endometrium is healthy, then she will have normal flow for 4 to 5 days. अगर on the other hand, in case her endometrium is thin, अगर endometrium thin है तो वो bleed ही नहीं करेगा, अगर bleed करेगा तो spotting होगी उसको. So when a woman has only spotting, or the periods become scanty and for less amount of time, less in amount, this is indicative है रश्मि, ये गारंटी नहीं है, indicative whether she may be having thin endometrium. On the other hand, if somebody has got PCOD, PCOD में क्या होता है कि follicles form later, follicle late बनते हैं, खूब सारे बन जाते हैं. हम तो एक follicle की बात कर रहे हैं जो उसका साइज होता है 2 सेंटीमीटर का. अब PCOD में follicle बनेंगे खूब सारे. So यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम और थिक होगा, पहले थिन रहेगा और फिर खूब बड़ा थिक हो जाएगा, प्लम्पी हो जाएगा. Here the woman will have heavy bleeding. ठीक है ना रश्मि? In your practice also I think so. अगर किसी के पीरियड स्कैंटी है, so probably she is having thin endometrium. और अगर पीरियड्स आर very very heavy, then goes in favor of PCOD. पर बीच में काफी इसमें मेडिकल कंडीशंस आती हैं, लाइक किसी का प्रोलेक्टिन बड़ा हो सकता है, किसी का थायराइड कैन बी मोर. They are medical conditions, but मोटा scanty periods means thin endometrium, or endometrium is not healthy. Have I answered your query now? So ये सब, yes sir. Sir, I also wanted to know कि if any woman can she can predict, is there any risk factor कि अगर उसमें ये risk factor है तो हो सकता है उसमें thin endometrium हो. So exactly what kind of risk factors are there which can lead to thin endometrium? Yeah, this is a very good question again. देखिए, अगर किसी भी वुमेन के अंदर जैसे प्रॉब्लम कॉल्ड हाइपो में क्या रहता है कि दिमाग से हार्मोन्स ही नहीं आते हैं. इट्स नॉट वेरी कॉमन बट इट इज सीन इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस. जब दिमाग में LH, ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी, एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी की, अगर वहां से LH-FSH नहीं आएगा तो फिर बदन के अंदर डिम नहीं बनेंगे. जब डिम नहीं बनेंगे तो एस्ट्राडियोल नहीं आएगा.
So, कुछ some ladies can have hypo condition, यानी कि hypo मतलब कम, hyper मतलब ज्यादा. आपने सुना होगा ना कि ये तो बहुत हाइपर है, अपने बोलते होंगे फ्रेंड्स के बारे में तो बड़ी हाइपर है. तो हाइपर मतलब हाइपर एक्टिवेटेड, एंड हाइपो मींस क्वाइट. हाइपो हाँ, कहते हैं ना हाइपर है तो बहुत हाइपर है. ज्यादा. कई बार हम जो बच्चे खूब सारे जवाब देते हैं, जब टीचर पूछती है सवाल पूछती है तो हाथ खड़े कर देते हैं, तो कहते हैं बहुत हाइपर है ये. तो दैट्स कॉल्ड हाइपर, एंड हाइपो मींस कम. अगर हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स ही कम है, बॉडी में ही कम है शुरू से ही, इसे कहते हैं हाइपो, तो वहाँ पे थिन एंडोमेट्रियम होगा हमेशा, बिकॉज हार्मोन E2 ही कम है उसके अंदर. सेकंड कंडीशन है पीसीओडी. अब पीसीओडी के अंदर क्या ना, हम हमेशा देखेंगे कि the girl will be maybe slightly obese, she'll have some hair growth on her body, she'll have some acne, she'll have oily skin, and her follicles will be bit too many. She'll have large number of follicles in the body. So such a woman, we know that इनमें क्या रहता है, कुछ हार्मोनल रिवर्सल होता है. दे हैव मोर ऑफ एंड्रोजेंस एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजेंस. सो ऐसे केसेस के अंदर E2 भी हाई रहता है बट एंड्रोजेंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं. तो ऐसे केस में ET थिन हो सकता है. तो पीसीओडी में थिन एंडोमेट्रियम मिला और हमने बोला यार थिन ET है, एंड वो पुअर पेशेंट इज सो वरिड. ये गलत है. पीसीओडी में थिन एंडोमेट्रियम होगा ही, बिकॉज इनके अंदर डिम रेडी होते हैं on 20th day. Normally a girl will have her follicles ready on 12th day. In a PCOD patient, her follicles will get ready on 20th 24th day. और हम उसको बोलेंगे चलो ET थिन है. पहले तो PCOD है, उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, फिर वेट भी ज्यादा है, थायराइड भी है, विटामिन डी भी कम है, प्रोलेक्टिन भी बढ़ा हुआ है, और हम जब बोल देंगे बिल्कुल एक और चीज ET भी थिन है. सोचो. So we need to be very careful before we open our mouth. PCOD में ET थिन हो सकता है. नंबर 2. नंबर 3 का जो कॉमन कारण रहता है वो ये रहता है कि अगर किसी ने पहले DNC कराया, लॉट ऑफ आजकल तो नहीं होता है. In my youth, when I was doing my MD, there was a policy, every woman had to undergo endometrial biopsy. So जो भी हमारे पास पेशेंट आते थे, हमें को DNC कर दिया करते थे, तो लुक एट द एंडोमेट्रियम. उसमें अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, अल्ट्रासाउंड की बहुत कमी थी उस समय के अंदर. जब भी हम एंडोमेट्रियम को छेड़ेंगे, आप सोचिए कि अगर एक टेप अपने रैपर पे लगी हुई है तो क्या वो आपके हाथ पे चिपकेगी? अगर वो रैपर पे लगी हुई है तो नहीं चिपकेगी. अगर हमने उसका टेप का बेस निकाल दिया तो टेप चिपकनी शुरू हो जाएगी. सेकंड एग्जांपल है कि फेविकोल और एक ग्लू. अगर हमने एंडोमेट्रियम के अंदर बायोप्सी करी अनवारंटेड और गलत तरीके के साथ में, तो पूरा एंडोमेट्रियम चिपक जाता है. Then endometrium becomes thin. It is called, Rashmi, that is called Asherman syndrome. That's very common. Asherman syndrome. और फिर एक और रश्मि मैं बहुत देख रहा हूँ आजकल, बहुत बड़े शहरों के अंदर भी पीपल आर डूइंग पॉलीपेक्टमीज. अगर पॉलिप आ गया तो पॉलिप को निकाल देंगे, फाइब्रॉइड आ गया तो फाइब्रॉइड को निकाल देंगे, जो कि निकालना होता है. परंतु डन बाय इनएक्सपीरियंस्ड पीपल. Large number of time doctors have to be very qualified in doing an hysteroscopic myomectomy, polypectomy. ये ग्रोथ कर्व रहता है, हम सबका ग्रोथ कर्व है लाइफ में, हम सब सीख रहे होते हैं, पर किसी कारण से या तो उसका हर बॉडी रिएक्ट्स इन अ रॉन्ग वे, और मे बी सर्जरी वाज मोर इन्वेजिव, गलत कॉटरी ज्यादा यूज हो गया, कटिंग ज्यादा हो गया, सिजर्स हैव गॉन डीपर, स्टक. These surgeries can also lead to thin endometrium. So beside, पहले होता ना DNC, अभी DNC नहीं रहा है, अभी ऐसा होना शुरू हो गया. Sir, in my place, almost my place, the people do DNC like blindly. They do DNC. Every patient give history of DNC. Every thin endometrium patient, they say कि either for infertility or some RPOC, they have undergone DNC, and so after that they got thin endometrium. So, thank you in so small much for bringing places, it up. DNC is still. तो अभी आप you are at Ambikapur, change the way people think. You are the future. Yes, No woman should undergo DNC. No woman should Yes, undergo sir. DNC. जब होते हैं तो बहुत gentle DNC होती है. We take a pipil cannula. We just keep it there Yes, and just aspirate. So we should do aspiration and not curettage. Simply. Okay. Secondly, मैंने बोला कि फाइब्रॉइड का सर्जरी हो, और एक और कंडीशन जो कि पहले बहुत कॉमन थी मेरे प्रैक्टिस के अंदर, बीइंग इन द आर्मी हमने बहुत देखा, द पीपल हु हैव गॉट TB,
और Yes, जेनिटल sir. इन्फेक्शंस, उनके अंदर भी एंडोमेट्रियम somehow, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ना, दैट इज वेरी फॉन्ड ऑफ द ग्रोथ इन एंडोमेट्रियम एंड द ट्यूब, तो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है और एंडोमेट्रियम के अंदर इंजरी कॉज करता है, सो एंडोमेट्रियम बिकम्स थिन. सो टीबी nowadays not very common. अंबिकापुर के अंदर कैसा होता है मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके बाद में, but it's pretty common sometime back. Now we don't get that No, type of sir. patient. Nowadays, I haven't seen any case of endometrial. Like at least in my practice, I haven't seen any endometrial TB. Maybe some Yeah, seniors must have seen, but not me at least. so things are becoming better, so that's the good news. Yes, So sir. thinity का कारण हाइपो बताया मैंने आपको, फिर मैंने बोला पीसीओडी, वेरी कॉमन पीसीओडी को हम बिल्कुल एक और तमगा दे देंगे, साथ में एक और मेडल लगा देते हैं, थिनिटी है. बेचारी पेशेंट परेशान हो जाती है, कहाँ की डॉक्टर के पास में आ गई. Yes, सो यू हैव टू बी केयरफुल. yes, हम जो भी शब्द इस्तेमाल करेंगे ना, उसका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन होता है एक लेडी के ऊपर. वो घर जाके फोन उठा के फिर गूगल yes, पे टाइप करेंगे, मैडम विल गो एंड टाइप व्हाट इज थिनिटी, थिनिटी के बारे में टाइप किया, और फिर पूरा डॉक्टर गूगल विल गिव हर so much information, yes. she'll get confused. So that should not be done. And then डीएनसी नहीं करना चाहिए, और फाइब्रॉइड की सर्जरीज देख के करनी चाहिए, और फिर टीबी. These are common conditions in which we can know that she may be Yes, having sir. immunity. Or a woman who's got abortions before, Yes, she's sir. not conceiving, Sir, multiple water. Yes. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes. sir, can thin ET lead to, like, if a woman with thin ET conceives, so can it lead to abortion or something like that? Like, There some women have given, like, some of my patients have given history of recurrent pregnancy loss also. So when I investigated them, they got thin endometrium. For 2 to 3 cycles naturally, I have done their ULG and found they have thin endometrium. So, is there any link with that? Because it is thin, so it may lead to recurrent pregnancy loss. One of the तो reasons. अभी हमने रश्मि बात किया था ना कि एक छोटे बेबी को एक अच्छा पिलो देना होता है, Yes, sir. गरम गरम फूड देना होता है, और Okay. खाने के लिए खूब अच्छी चीजें देनी होती हैं. बेबी लाइक्स टू बी पैम्पर्ड ना. तो Yes, अगर yes, sir. अगर किसी कारण से जो हमारे पास बेबी है, बेबी नॉट गेटिंग गुड न्यूट्रिशन, गुड वार्मथ, Yes, sir. गुड पिलो, Yes, sir. उसे अगर हार्ड बेड दे दिया, मैं आपसे पूछूंगा, आज आप घर में गए और आपकी मम्मा ने बोला आज तुम्हारे लिए बेडिंग नहीं है, हार्ड बेड है आज, कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा ना, खूब सारा गुस्सा भी आएगा, कुछ कर नहीं सकते, Yes, सोना sir. तो पड़ेगा ही. तो पर आपको अच्छे सपने नहीं आएंगे, यू फील बैड कि सो वी ऑल वांट अ सॉफ्ट बेड, सॉफ्ट पिलो, Yes, क्लीन sir. क्लीन बेडशीट्स. तो बेबी के लिए ना ये सब चीजें जरूरी होती हैं. इसीलिए अगर जब एंडोमेट्रियम थिन होता है, देन बेबी कैन हैव लो इम्प्लांटेशन रेट. बट ऐसा नहीं है. एज पर द वर्ल्ड लिटरेचर, इवन एट 4 to 5 millimeter प्रेगनेंसीज हैव अकर्ड इन आईवीएफ, और नेचुरली भी होती होंगी, बट वो वही है कि वो हार्ड बेड है, प्रोबेबिलिटी कम रहती है. इवन विद एंडोमेट्रियम ऑफ 5 to 6, around 15-20% of women can conceive by ET, by doing an IVF, but probability is very less. One side it is around 70%, other side around 20% or even lesser. They are rare case reports. So yes, you're right. In case endometrium is not healthy, endometrium is not proper, is not properly, is not giving good nutrition to the baby may not implant. Even if the baby implants, it can have abortions. Okay, sir. Okay, sir. Sir, if a woman knows she has thin endometrium, तो उसे क्या counsel करना है अगर she want to conceive? So how to proceed if she wants to get conceive? तो सबसे पहले तो हमने डायग्नोज कर लिया by doing an ultrasound. I assume we have done an ultrasound, we have diagnosed it. Yes, sir. Yes. So now, so there are two ways of handling this girl. These are all young girls nowadays who come to us for treatment. The two ways. Yes. पहला है कि उसको हम बोलेंगे कि we will do good counseling, number one, and try to find out why is she having thin endometrium. क्या cause है? क्या PCOD तो नहीं है? क्या ये wrong diagnosis है? या फिर पहले सर्जरी हो रखी है? क्या Asherman syndrome है? So you have to find out what is the cause, and depending upon the cause, we will start treating her. Now, treatment of Asherman syndrome can be difficult, but regular thin endometriums can be treated.
we can give them medical therapy. We can give them medical therapy, and we can give them some sort of tablets called estrogens. So दिन में एक गोली 2 मिलीग्राम का दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार हम देते हैं, and the endometrium will start becoming fluffy. ठीक हो जाता है. Secondly, we can give her something like many people do PRPs. So PRP क्या रहता है, हम ब्लड निकालते हैं और उसमें प्लेटलेट निकाल लेते हैं. हम अपना खून लेके we'll take out blood from our body, we'll take out प्लेटलेट जो पार्ट होते हैं ब्लड के वो निकाल लेते हैं. They can be put inside the thin endometrium by hysteroscopy. So endometrium can start forming there. Some people do hysteroscopy and do scratching. This is one way of doing getting good outcome. And then ये सब चीजें, some people put GCSF, काफी तरीके हैं काम करने के, तो ये सब चलते रहते हैं. But I think most important is counseling. You tell the woman not to worry unnecessarily, because this is one problem. ये एक चुटकी बजाती ठीक नहीं होने वाली. It will take some time. So अगर किसी का कोई DNC हो रखा है और एंडोमेट्रियम बंद है, तो कुछ भी करें, एंडोमेट्रियम बनना मुश्किल है. So but there are ways. Some people put PRPs, some people put stem cells. मल्टीपल महंगी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल है, दे कैन बी ट्राइड. जो बेसिक चीजें हैं. अब रश्मि, आपने जो हमेशा बात करा है एंडोमेट्रियम थिक या थिन का, पर एक चीज मैं आपने और ऐड करूंगा फॉर ऑल आर पीपल हु आर देयर, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियल ब्लड सप्लाई. एंडोमेट्रियम में अगर ब्लड बढ़ेगा तभी एंडोमेट्रियम बड़ा होगा. एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? दिन में 8 घंटे सोना चाहिए, जो कभी भी नहीं सो पाया. In my 58 years running, I've never slept for 8 hours a day, but 8 घंटे सोने से it is known that body can reboot. हम अपने मोबाइल फोन को भी चार्ज करते हैं. आजकल हमने देखा है कि अगर आप देखें तो more than our own life we care for our mobile phones. We have to reboot ourselves, and for that we have to sleep. And it has been found कि जो लोग दिन में 8 घंटे से ऊपर सोते हैं, they can improve their endometrium. So all my friends who are present here, my request to you will be that please take good light sleep. Body can reboot by doing that. Number 2, remove your stress. Body में, और सबसे मुश्किल है ये, जो काम आसान होती है ना, जो चीज फ्री की होती है, सबसे मुश्किल होती है करनी. अगर हम बोलेंगे ना स्टेम सेल करा लो, दोनों हाथ खड़े, यस सर अभी स्टेम सेल कर दो, हमारा कितना खर्चा है? 3 lakhs 2 lakhs, अभी कर दो. अगर हम बोलेंगे कि रिलैक्स करो और 8 घंटे दिन में 6 घंटे सो लो, सोने का समय नहीं है किसी के पास में. ह्यूमन नेचर. स्ट्रेस कम कीजिए. स्ट्रेस कम करने से बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ेगा. एंड हाउ डू यू डू इट? अब बोलूंगा योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो. बोलेगा यार कमाल है, हम आपके पास में आए हैं, महंगे टीके लगाओ, बड़ा ऑपरेशन करो, अपनी वाइफ को लेकर आए हो, ओटी में लेके जाओ, कुछ करो. आप कहते हो कि ओम विलोम कर लो, क्या कर लो. हम बोलेंगे नाड़ी शोधन करो, तुम्हारे नाड़ी शोधन करने को, हम तो सर्जरी के लिए आए हैं. तो रिमेंबर ऑल ऑफ यू आर हियर दैट योगा इज अ वेरी पावरफुल थिंग फॉर स्ट्रेस फाइटिंग. फ्री है, हम घर में कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते. हमको ओटी में जाके ऑपरेशन कराना अच्छा लगता है. आप करके देखिए, यू विल फील बेटर. नंबर 2, जो स्टडीज अभी आई हैं वो दे टॉक अबाउट विटामिन ई. विटामिन ई, रश्मि, इज अ वेरी गुड ड्रग फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड सप्लाई. And vitamin E is a wonder drug for people who have got thinity, and that works on the principle that you can take some avocados. वो एक फल आया है यूरोप से, यूएस, एवोकाडो, जिसको देखो एवोकाडो खा रहा होता है. ये तो फैशन, लोग अपने देश के चीकू नहीं खाएंगे, वो एवोकाडो खाना शुरू कर दिया सबने. वो इंपोर्ट होकर आता है. एवोकाडो अच्छा है, बट यू कैन हैव सम नट्स, यू कैन हैव सम इंडियन जो नट्स आते हैं, अखरोट खा लीजिए, बादाम खा लीजिए. देश में इंडिजिनियस है. They will give you enough vitamin E. Vitamin E is very high in nuts and avocados and small fruits. Arginine is one wonderful drug. Arginine के sachet आते हैं. And arginine you can get from fish, red meat, dairy products. Arginine की मात्रा बहुत high होती है. So arginine is a very good thing. So that, and then I think जो रामबाण बोले जाते हैं ना इसके अंदर, वो है ginger, cinnamon, beetroot. They help you increase your blood supply, and they are good for you. But I think जब मैं अटक जाता हूँ, so मैं गलती करता हूँ, but कई बार I succeed. I use lot of Ayurvedic medicines. My favorite are जब हम बिल्कुल दीवार की तरफ
कुछ और करने को नहीं है मेरे पास में, बिकॉज आई डोंट लाइक डूइंग अन एक्सपेंसिव टेस्टिंग फॉर एनी वुमन, एक्सपेंसिव Yes, sir. ऑपरेशन फॉर एनी वुमन, मैं वो करना पसंद नहीं करता हूँ, उनका रिजल्ट क्लियर नहीं है अभी हमको. आई Yes, sir. लाइक टू गिव देम आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंड आयुर्वेदिक Okay, मेडिसिन sir. जब फेल हो जाता है दे वर्क. Mhm. So Shatavari is one very good method. Shatavari is very good. Okay. My favorite is Falgrit. I give Falgrit to large number of people. Falgrit होते हैं ना, घी होते हैं ये. They're called grits. Okay. तो इनको खाने का तरीका होता है. शतावरी भी ग्रिट के फॉर्म में आता है. इसे खाने का तरीका होता है, बट आई यूज प्राइमरीली फलग्रित. तो इसको कच्ची धागे वाली मिश्री के साथ में खाना होता है, कोसे दूध में लेना होता है. देयर आर वेज, दे वर्क फॉर मी. Okay, So when sir. I fail, I go to Ayurvedic, and then I always give people a lot of mind coolants, like give them Brahmi, Ashwagandha. Okay, sir. Ashoka Rish is Yes. one very good medicine. Ashoka Rish is very good for Ashoka Rish, and Falgrit are very good for endometrial lining in my experience. But it is my experience. But अगर आप बुक्स भी Yes, sir. देखें आयुर्वेदा की, वो भी इनके बारे में बात करते हैं. So I think Ayurveda has got a big role in these sort of things. But best is दिन के अंदर 7 या 8 घंटे सोना, and that's the most difficult part anybody can ever do. So I think that's all from my side about the alternative medicines and the drugs for ET. Okay. Means good sleep and good food can cure thin endometrium. It can help you fight thin endometrium. It may not cure, Okay, but not cure. Okay, sir. it'll help the drugs to better. देखना, अगर हम हमारा मानसिक रूप से परेशान है, हम बहुत गुस्से में हैं, Yes, sir. तो हम जो भी करेंगे दवाई काम नहीं करेगी ना बदन के अंदर. Yes, sir. हम हैप्पी Some होते हैं patient सारे. also can't conceive if they are in stress. If they have some family issues, they can't conceive. Some patient Yes, have some kind of issue. So I have seen exactly. patients. So Sometimes I think I just counsel them, be relaxed, and they just conceive within 1 or 2 cycles. After they come to thank me कि okay, you gave me correct advice. आपने सही बोला, मैं relax किया, सब ठीक हो गया. So yes, sir. exactly. तो शांत रहना बहुत जरूरी है. So sir, और मुस्कुराते sir, I wanted to ask कि is there any role of OC pills in correcting thin NT? Because in my place, lots of people give, and sometimes I also give OC pills for 3 cycles. But sometimes it works, sometimes it don't. So I actually wanted to know, is there any role of OC pills? ये ओसीपी का पता है क्या रोल है? किसी को हाइपो है बॉडी में, उसके हार्मोन्स ही नहीं है. Then we give OC pills. The OC pills will act upon they have got estrogen in them. They act upon the receptors in the endometrium. और जब receptors होते हैं ना E2 के, they become activated. So endometrium starts forming. And then we stop OC pills. She will Yes, bleed. sir. जब भी, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी का एंडोमेट्रियम डिसऑर्डर्ड है या हेल्दी नहीं है, in case we get her 2 or 3 periods by giving her estrogen from outside, their receptors become activated, and after waiting for 2-3 cycles her endometrium starts forming again. But when somebody is on OC pill, don't record their ET. The ET will be thin on Okay, OC sir. pills. परंतु yes, like PCOD patients, पहले हम लोग एक जमाने के अंदर we used to give Okay, them sir. OC pills. So 2-3 बार periods आ जाएंगे, then endometrium will start growing again. Yes, when Okay. everything fails, OC pills can be given. Nothing wrong. ये ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगी या फिर उसका आउटकम क्या है हमें क्लैरिटी नहीं है. बट अगर किसी को पीरियड ठीक से नहीं आ रहे हैं, 2-3 महीने OC pill दिया. Now not only OC pill, we can give them pure estrogen also. We give them, so, we can give them Premarin. किसी का अगर एशरमैन सिंड्रोम है, व्हाट टू डू? समबडी Yes, विद sir. एशरमैन सिंड्रोम, किसी का ईटी बहुत थिन आ रहा है, Yes, sir. अंदर झिल्ली बनी हुई है, we put them on Premarin, we put them on pure estrogens, Yes, sir. 0.6 to 5 milligram. We give them Progenova for 2-3 months. So make them bleed, we make them bleed. कई बार ब्लीड करने से जो रिसेप्टर जो दब गए हैं, they get activated. So there is nothing wrong in doing this. Yes, sir. But it is not the method to cure. This thing can be tried. Can be tried for 2-3 cycles. But I'll prefer to give her Premarin, or I'll prefer to use something like Premarin or something like Progenova. Progenova brand name hai. I basically meant using an estradiol to make her endometrium grow, then stop, it will fall down. Again grow, Okay. fall down. Again grow, fall down. And then the endometrium will become independent, Yes, starts working again. okay, sir. Sir, last question.
रश्मि आपको आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ. आई थिंक आप आपका सिग्नल मतलब इज गॉन. यस, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं रश्मि. प्रॉब्ली ड्यू टू दिस लाइटनिंग एंड हैवी शावर्स इन अंबिकापुर आपका सिग्नल वीक है. सो आई थिंक आज हमने सबसे बात करा, वी स्पोकन अबाउट थिन एंडोमेट्रियम. सबसे पहला सवाल था कि थिन एंडोमेट्रियम क्या है, थिक एंडोमेट्रियम क्या है. वी स्पोकन अबाउट दैट. देन वी हैव स्पोकन अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ थिन एंडोमेट्रियम और थिक एंडोमेट्रियम. वी स्पोकन अबाउट व्हेन, कब हमको बोलना है कि तुम्हें थिन एंडोमेट्रियल है. हर समय वी कांट कमेंट ऑन थिन ईटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. वी हैव टू हैव अ फिक्स्ड डे टू कमेंट अपॉन दैट. How to treat it by using some alternative medicines or by taking some drugs. We have spoken about that. And I think we have covered everything about thin ET, which you would like to know. So I think that's all from our side. It was very wonderful being with all of you. And I think we'll connect soon again after 15 days. Till that time, in case you have any queries for you, feel free to call us up anytime. We are there to help you. You can contact us on our on any of the channels we have. You can come to Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. We are always there. You can visit our YouTube channel. We have many other videos which you can watch and learn. So, any questions from anyone here? Anyone has any questions for me? I'll go to the comment section and try to find out. So, पहला जो सवाल मैं उठाऊंगा, I get a question from Deepika Guhan. English please. Sorry Deepika, मैंने miss कर दिया. I should have spoken in English. So I'll take care in the future. And then Jyoti Yadav. Follicle 2 centimeter का हो, ET thin हो, ऐसा हो तब. So as I've told you, Jyoti, when the endometrium is 2 centimeter and it is thin, we are sure that the follicle would be forming enough amount of estradiol. In this case, you can always do an E2 test and look what value of E2 you are getting. That will be somewhere between 170 and 200 picogram. In case we have thin ET at that point of time, this means it is actually thin ET. Then we will look at other causes of thin ET and start treating them. So it's a good question. The value here is doing an E2 testing for that person. Another question comes from Naru Malar. Dr. Naru Malar, I'm sorry, you said again, explain in English, please. I am sorry for that. I missed you for this. My apologies. And next question from Reena Sharma. She's given a compliment. Thank you so much. Shivani Agarwal, thank you so much. Anukampa Tiwari. One patient had one baby by LSCS of 6 years after she had amenorrhea. This happens many times. Post cesarean, there can be some infection. So Anukampa, there can be some infection after we have done a cesarean section. And sometimes, we use a lot of suture material to tie up the uterus. The suture material can also lead to some sort of irritation in the endometrium. The endometrium gets inflamed and then it gets packed like this. So infection, use of threads, and sometimes the patient's body response can be like that. LSCS can lead to thin endometrium, rarely but not very commonly. So then we have Snehata, and from Naru Malar again. Now I think she can understand my language. She has said, "Sir, role of sildenafil." So sildenafil is one tablet. Sildenafil is nothing but Viagra. So sildenafil can increase the endometrial blood supply. Sildenafil we give to the people once in a while. We do give once in a while, but not routinely. It may help, it may not help. There is no advisory that we should be giving it. Some people use Ecosprin tablet. So Ecosprin is again debatable, but I also use Ecosprin once in a while. Endometrial scratching, it is debatable. We should be not doing it in every patient. It's more of a research. PRP, GCSF, they're all under research. There is no recommendation that we should be doing it in every patient. But yes, when everything fails, we can do it. And as I've told you, that I also use a lot of Ayurvedic medicines. Some people use stem cell therapy. Some people use different difficult PRPs, scratchings. Yes, their choice. But all of them are not actually recommended. We have to wait for more evidence. So Rashmi, you're back. Sorry, sir. Because of the poor connectivity, so I got lost. Extremely sorry for this.
Not at all, not at all. We were missing you. So I'm done, Rashmi. You can sum it up, and then we'll meet them Yes, sir. again after 10-15 days. Yes, sir. Thank you so much, sir. It was very nice session, very well explained, and I hope everyone who have joined us got their answers and all their queries are solved. Thank you, sir. Thank you so much. So I think, Rashmi, I need to apologize. I need to apologize to Dr. Rekha Radhakrishnan. Yes, sir. It was more in Hindi. I'm sorry, Rekha ji. I'm sorry for that. Dr. Kanango Lakshmi. I'm sorry for this. Again in English. Deepika Guhan, English, please. So I think Yes, sir. I've Sir, I went think overboard with from my. next time you need to explain both in English as well as Hindi. Yes, so I'll be careful. Malar, Yes, sir. I'm sorry for this. Let's speak in more in English, less in Hindi. Thank you so much, guys. Thank you so much for being with Thank me. you, sir. And so, Thank Rashmi, you, sir. you were phenomenal as always. I'm feeling jealous of you that you got such a good weather in Ambikapur, Chhattisgarh. Yes, sir. Delhi is Weather is really. good, but sir, connectivity is very poor, sir, here. Okay, Okay, sir. so tell people not to do DNCs there, okay? They should not do Yes, DNC. sir. Very common, sir. Thank you, sir. Okay, bye everyone. We can meet. You have our numbers on the channel. We are on Facebook Live. Come to our YouTube channel and you can always watch this video again. Goodbye. Take care. Dhanyavad. Bye, sir. Bye, Rashmi. Bye, sir. Good day, sir. Bye. Good day.